Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to study water potential and its effect on plant cells. First of all, what is water potential? Water molecules possess kinetic energy, which means that in liquid or gaseous form, they move about randomly and rapidly from one place to another. वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से लिक्विड या गैस की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल रैपिडली और रैंडमली मूव करते हैं. Greater the concentration of water molecule in the system, greater is the total kinetic energy of the water molecule. This is called water potential. जितनी वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी और इसी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं. मतलब kinetic energy possessed by the water molecule due to which they move rapidly and randomly from one place to another. This is called water potential. There are two factors that affect water potential: solute concentration, जिसको solute potential या osmotic potential भी बोलते हैं, और pressure potential. Exerted pressure और solute concentration ये दोनों water potential को affect करते हैं. Water potential को जाहिर करने के लिए psi W सिंबल इस्तेमाल करते हैं. psi W. Pure water has maximum water potential. याद रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां याद रखनी है कि जो प्योर वाटर होगा उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और वो 0 होगा. इसका मतलब जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनका वाटर पोटेंशियल 0 से कम होगा, नेगेटिव में होगा. किसी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ही उसका वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा. प्योर वाटर हैज अ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, वो 0 होगा. और वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल. वाटर की मूवमेंट हायर वाटर पोटेंशियल के रीजन से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होगी. जैसे मैंने कहा कि प्योर वाटर हैज अ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल और वो 0 होगा. All solution have lower water potential than pure water and so have negative value of water potential at atmospheric pressure and defined temperature. तो यहां हम osmosis को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं: the movement of water molecule from a region of higher water potential to a region of lower water potential through partially permeable membrane. तो जो कॉन्सेप्ट ये है कि what is water potential, kinetic energy possessed by the water molecules. और फिर greater the concentration of water molecule, greater will be the kinetic energy and greater will be the water potential. Pure water has a maximum water potential जो 0 होगा और तमाम solution का water potential 0 से कम होगा, यानी नेगेटिव में होगा. और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना water potential कम होगा और water की movement होगी from higher water potential towards lower water potential. Then two factors which affect water potential. एक हम solute potential कहते हैं या osmotic potential कहते हैं. Is a measure of change in water potential due to the presence of solute molecules. solute की presence की वजह से जो water potential में change आती है उसको solute potential कहते हैं और ये हमेशा negative होगा. More solute molecule present, lower will be the water potential. More negative का मतलब होगा lower water potential होगा.
सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो जैसे मैंने बताया कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने से वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। यूं यूं सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वाटर पोटेंशियल ऐसे ही नेगेटिव होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और जीरो होता है। कंसंट्रेशन बढ़ने से वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा और वो नेगेटिव में होता जाएगा। जितना नेगेटिव होगा उतना वाटर पोटेंशियल कम होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम होगा और वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल। एक चीज आती है प्रेशर पोटेंशियल। If pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases. अगर किसी solution पर या प्योर वाटर पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। तो सोल्यूट बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल कम होता है और प्रेशर बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है। When water enters the plant cell by osmosis, pressure may build up inside the plant cell. जब प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर होता है तो सेल के अंदर एक प्रेशर बनता है जिसको ट्रिगर प्रेशर कहते हैं या प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, जो सेल को टर्चर कर देता है। तो वाटर पोटेंशियल का इन्हिसार दो बातों पे है, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। अब हमने ये देखना है कि जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर वाटर सेल के अंदर एंटर होगा तो सेल का वैक्यूल बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बनना शुरू हो जाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेगा टुवर्ड द सेल वॉल। साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई करेगा। वो जो इंटरनल प्रेशर होगा जो सेल वॉल के ऊपर पड़ रहा है उसको प्रेशर पोटेंशियल या ट्रिगर प्रेशर कहते हैं और इसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। Water potential and its effect on cell. When plant cell is placed in dilute solution or pure water, जब प्लांट सेल को प्योर वाटर में या डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो वाटर विल मूव इनटू द सेल। जब हम प्लांट सेल को किसी प्योर वाटर में या डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्लेस करें जिसका वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर जो सैप है उसके वाटर पोटेंशियल से ज्यादा हो, वाटर विल मूव इनटू द सेल, its vacuole swell up and cell is called turgid. The internal pressure exerted by the cytoplasm and forces cell membrane against the cell wall is called pressure potential या turgid pressure. ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट सेल है, इसको ऐसे सोल्यूशन में प्लेस किया गया है जिसका वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल से ज्यादा है। सेल को, प्लांट सेल को प्योर वाटर में या डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्लेस किया गया और उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल से ज्यादा है, तो उस सूरत में वाटर विल मूव इनटू द सेल। सेल के अंदर एंटर होगा, वैक्यूल में जाएगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा और जब वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो सेल मेम्ब्रेन इज पुश्ड टुवर्ड द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल की तरफ धकेल दिया जाएगा और सेल, जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेस हो जाए तो हम ये कहते हैं कि सेल टर्जिड हो गया। और जो इंटरनल प्रेशर, वो जो प्रेशर है जो फोर्स कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को टुवर्ड द सेल वॉल, ये जो स्मॉल एरोज शो कर रहे हैं, इसको प्रेशर पोटेंशियल या ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। ये इंटरनल प्रेशर विच फोर्सेस द सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड द सेल वॉल, इसको क्या कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल या ट्रिगर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यूं यूं वाटर एंटर होता जाएगा, ट्रिगर प्रेशर बढ़ता जाएगा और जब सेल फुली टर्जिड होगा तो इसका ट्रिगर प्रेशर मैक्सिमम होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि when the turgid cell is placed in the concentrated solution which has lower water potential than cell sap,
अगर हम टर्जर्ड प्लांट सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में प्लेस करें जिसका वाटर पोटेंशियल सेल के वाटर पोटेंशियल से कम है, यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में प्लेस करें, when a turgid plant cell is placed in concentrated solution which has lower water potential than cell, water will move out of the cell, its cytoplasm, its vacuole will shrink and cell is called flaccid और इसका target pressure decrease हो जाएगा। ये प्लांट सेल था जिसको हमने ऐसे सोल्यूशन में प्लेस किया जिसका वाटर पोटेंशियल इंटरनल वाटर पोटेंशियल से कम था, यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में प्लेस किया। जब हम बाहर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो अंदर से वाटर बाहर निकलेगा, एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर होगी। जब एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर होगी, वैक्यूल श्रिंक करेगा, वैक्यूल श्रिंक करेगा तो साइटोप्लाज्म श्रिंक करेगा, इसलिए सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हटती जाएगी। ऐसे सेल को फ्लैसिड सेल कहते हैं जिसमें सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हटना शुरू हो जाए, ऐसे सेल को फ्लैसिड कहते हैं। इसकी टर्जिडिटी का लॉस हो जाता है, सेल लूज हो जाता है, सेल फ्लैसिड हो जाता है। तो अगर हम प्लांट सेल को प्योर वाटर में प्लेस करेंगे तो वो सेल टर्जिड हो जाएगा, और अगर प्लांट सेल को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो वो फ्लैसिड हो जाएगा। अगर हम प्लांट सेल को ज्यादा वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा, और अगर हम प्लांट सेल को लेस वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो प्लांट सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।